تاریخ میں رام مندر اور بابری مسجد کا تنازع کب اور کیوں شروع ہوا؟ بابری مسجد کیسے تباہ کی گئی؟ بابری مسجد کے بعد کیا ہوا؟ ایودھیا کی تاریخی بابری مسجد اور رام مندر پر ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تنازع کو ایک صدی سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ ہندوؤں کی مقدس کتاب رامائن کے مطابق ہندوؤں کے دیوتا بھگوان رام ایودھیا میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد دشرتھ ایودھیا کے راجا تھے۔ رام نے بھگوان کے روپ میں ان کے گھر جنم لیا تھا۔ رام ہندوؤں کے ایک اہم دیوتا ہیں۔ ہندو روایات کے مطابق سیتا رام کی اہلیہ تھیں۔ انہیں سیتا ماتا کہا جاتا ہے۔ ان کا تعلق موجودہ نیپال کے جنک پور علاقے سے تھا۔ رام اور سیتا کے 2 بچے تھے جن کے نام لو اور کش تھے۔ رام اور ان کے خاندان کے افراد کے نام سے منسوب ایودھیا میں درجنوں مندر، عمارتیں اور گھاٹ بنے ہوئے ہیں۔ یہ بہت قدیم نہیں ہے اور بیشتر مغل حکمرانوں اور اودھ کے نوابین کے عہد میں تعمیر کی گئی تھیں۔ ایودھیا اتر پردیش کے دارالحکومت تاریخی شہر لکھنؤ کے مشرق میں 140 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ یہ دریائے گھاگھرا کے کنارے بسا ہوا ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ گھاگھرا ندی کو سریو بھی کہا جاتا ہے۔ ہندو سریو ندی کو مقدس تصور کرتے ہیں۔ مغل بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر سے منسوب بابری مسجد بابر نے نہیں بنوائی تھی۔ لودھی حکمرانوں کے خلاف اودھ اور بنگال کی اپنی مہم کے دوران بابری اسی راستے سے گزرے تھے۔ ان کے ایک کمانڈر میر باقی نے 1528 میں بابری مسجد تعمیر کرائی تھی۔ یہ مسجد شہر کے وسط میں مٹی کے ایک اونچے ٹیلے پر تعمیر کی گئی تھی۔ یہ شہر کی سب سے بڑی مسجد تھی۔ اس میں 3 بڑے گنبد تھے اور گنبد اور صحن کے بعد کھلا ہوا حصہ تھا۔ 3 طرف سے اس میں 4 دیواری تھی۔ اس میں تسلسل کے ساتھ 1949 تک نماز ادا کی جاتی رہی تھی۔ مسجد جس علاقے میں واقع تھی اس کے اطراف میں مسلمانوں کی آبادی تھی۔ کئی محلے ملی جلی آبادی کے تھے۔ آس پاس میں بہت سے مندر بھی تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں مسلم آبادی کم ہوتی گئی۔ رام مندر کا تنازع کب اور کیوں شروع ہوا؟ 1885 میں انگریزوں کے دور حکومت میں ایودھیا کے ایک سادھو رگھوبر داس نے فیض آباد کی ضلعی عدالت میں ایک درخواست داخل کی جس میں انہوں نے بابری مسجد کے باہر ایک چھتری بنانے کی اجازت مانگی، جسے عدالت نے مسترد کر دیا۔ اس وقت بابری مسجد پر دعویٰ نہیں کیا گیا تھا۔ 20ویں صدی کے اوائل میں ہندو مہاسبھا اور RS جیسی ہندو تنظیمیں وجود میں آ چکی تھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ کہا جانے لگا کہ یہ مسجد اس مقام پر بنائی گئی ہے جہاں بھگوان رام کی پیدائش ہوئی تھی۔ ان دعووں کے تاریخی شواہد یا ریفرنس نہیں ملتے ہیں۔ ہندو فریق کا کہنا تھا کہ یہ مسجد رام مندر توڑ کر اس کے مقام پر بنائی گئی ہے۔ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ 22 دسمبر 1949 کی رات کے اندھیرے میں ایودھیا کے کچھ سادھوؤں نے بابری مسجد کے درمیانی گنبد کے نیچے منبر کے مقام پر رام کی ایک چھوٹی مورتی رکھ دی اور اگلی صبح یہ افواہ پھیلائی کہ بھگوان رام بابری مسجد میں اپنی پیدائش کے مقام پر ظاہر ہو گئے ہیں۔ چند سادھو مسجد کے باہر بھجن کیرتن کرنے لگے۔ مسلمانوں کے مطابق اس مقام پر بتوں کی پوجا اس واقعے کے بعد ہی شروع ہوئی ہے۔ اس کے بعد کے 4 عشروں میں کئی مسلمان اور ہندو تنظیمیں اس زمین پر اختیار اور عبادت کے حق کے لیے عدالتوں کا رخ کرتی رہی ہیں، لیکن اس تنازع میں شدت 1992 میں اس وقت آئی جب ہندو انتہا پسندوں نے مسجد کو تباہ کر دیا۔ اس واقعے کے بعد ملک بھر میں ہونے والے مذہبی ہنگاموں میں کم و بیش 2000 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ مسجد کے باہر تعینات پولیس اہلکار نے جو رپورٹ درج کی تھی اس میں مورتی رکھنے والے سادھوؤں کے نام درج کرائے گئے تھے۔ مقامی کلکٹر کے نائر نے بابری مسجد پر تالا لگوا دیا۔ اس وقت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے اتر پردیش کے کانگریس کے وزیر اعلیٰ GB پنت کو مسجد سے مورتی ہٹانے کی ہدایت کی۔
पंत ने नेहरू को जवाब दिया कि अगर मूर्ति हटाई गई तो अयोध्या में फसाद बर्पा हो जाएगा। उस वक़्त के फैज़ाबाद के कांग्रेस के रुकने पार्लिमान बाबा राघु दास ने भी मस्जिद से मूर्ति हटाने की सख्त मुखालफत की थी। तक़सीम हिंद के बाद मुल्क में मजहबी मुनाफरत अपने अरूज पर थी। हिंदू तंजीमें इंतहाई सरगर्म थीं और मुल्क के मुसलमानों के खिलाफ फ़ज़ा बहुत ख़राब थी, जिसके नतीजे में दिसंबर 1949 से बाबरी मस्जिद में नमाज अदा नहीं की जा सकी। अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का तनाज़ा 1 सदी से ज़्यादा पुराना है। ये मुकाम हिंदू और मुसलमानों के दरमियान कशीदगी का बायस रहा है और दोनों फरीक इसकी मलकियत के दावेदार थे। हिंदुओं का दावा है कि ये ज़मीन उनके भगवान राम की जाए पैदाइश है और यहाँ पर बाबरी मस्जिद की तामीर एक मुसलमान ने 16वीं सदी में एक मंदिर को घिराकर की थी। सन 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच में शामिल 2 हिंदू जजों ने कहा था कि मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने इस मुकाम पर जो इमारत तामीर की थी वो मस्जिद नहीं थी, क्योंकि एक मंदिर के मुकाम पर मस्जिद की तामीर इस्लाम के असूलों के खिलाफ है। ताहम बेंच में शामिल मुसलमान जज ने अपने इख्तलाफी नोट में लिखा था कि मस्जिद की तामीर के लिए उस मुकाम पर किसी मंदिर को नहीं गिराया गया था, बल्कि मस्जिद की तामीर एक खंडर पर हुई थी। 6 दिसंबर 1992 को हिंदू इंतहा पसंद तंजीम विश्व हिंदू परिषद के कारकुनों, भारतीय जनता पार्टी के कुछ रहनुमाओं और उनकी हामी तंजीमों के कारकुनों ने मुबैना तौर पर तकरीबन 1.5 लाख रज़ाकारों के हमरा उस मुकाम पर चढ़ाई कर दी। ये जुलूस वक़्त के साथ साथ पुरतशद्दद होता गया और वो कई घंटे तक हथौड़ों और कदालों की मदद से मस्जिद की इमारत को तबाह करते रहे। उस वाक़े के बाद उस वक़्त के इंडिया के सदर शंकर दयाल शर्मा ने रियासत उत्तर प्रदेश की असम्बली को बर्खास्त करते हुए रियासत का इंतज़ाम अपने हाथ में ले लिया था और फिर 1993 में एक सदारती हुक्म के तहत बाबरी मस्जिद के इर्द गिर्द ज़मीन का 67.7 एकड़ रकबा वफाकी हुकूमत ने अपने अख्तियार में ले लिया। उसके बाद बाबरी मस्जिद के वाक़े की तफ्तीश के लिए एक कमीशन कायम किया गया, जिसमें बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के कई रहनुमाओं समेत 68 अफराद को उसका ज़िम्मेदार ठहराया गया। इस केस की समाअत अब तक जारी है। इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की शुमाली रियासत उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में मतनाज़े राम मंदिर का संगे बुनियाद 5 अगस्त 2020 में रखा। संगे बुनियाद रखने के बाद इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की तामीर के मुकाम पर भूमि पूजा में हिस्सा लिया। इंडियन वज़ीर आज़म की अयोध्या आमद के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे और इस तकरीब में चंद ही अफराद को शिरकत की इजाज़त मिली थी। इसकी वजह ये थी कि दुनिया भर के मुतअद्दिद ममालिक समेत इंडिया पर भी कोरोना वायरस ने अपने पंजे गाड़ रखे थे। मौजूदा मंदिर पर काम करने वाले चीफ आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा ने कहा था कि मंदिर निगारा स्टाइल, जो कि शुमाली इंडिया में मंदिरों की तामीर के लिए मकबूल स्टाइल है, में तामीर किया जाएगा। इंतहा पसंद हिंदू आज भी शुमाली इंडिया के कस्बे अयोध्या में उस मुकाम पर मंदिर की तामीर के बारे में पुरअज़म है जहां 1992 में बाबरी मस्जिद मुनहदम कर दी गई थी। 1992 में बाबरी मस्जिद का इन्हदाम भी अमवात का एक सिलसिला अपने साथ लाया था और मुल्क में माशरती कशीदगी में इजाफा हुआ था, जिसने हिंदुस्तानी जमहूरिया को हिलाकर रख दिया था। 2019 में अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मतनाज़े अराजी मंदिर ट्रस्ट के हवाले कर दी थी, लेकिन अदालत ने अयोध्या तनाज़े के बारे में अपने फैसले में लिखा है कि 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद का इन्हदाम कानून व नज़म की बेइंतहाई खिलाफ वर्जी था और इबादत गाह को मुनहदम करना एक सोची समझी साजिश थी। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा कि मुसलमानों को गलत तरीके से मस्जिद से महरूम किया गया, जो 450 साल पुरानी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को इस मामले पर फैसला सुनाते हुए बाबरी मस्जिद की जगह हिंदुओं के राम मंदिर की तामीर के दावे को तस्लीम कर लिया। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के मुकदमे का फैसला
सुनाते हुए मतनाज़े ज़मीन पर मंदिर की तामीर और मुसलमानों को मस्जिद के लिए मुतबादल 5 एकड़ जगह देने का हुक्म दिया। अदालत ने मरकज़ और उत्तर प्रदेश की रियासती हुकूमत को हदायत की है कि वो इस मुतबादल ज़मीन का इंतज़ाम करें। भगवान राम की पैदाइश से मंसूब इस मंदिर की तामीर पर $217 मिलियन की लागत आई है और अभी तामीरात का काम जारी है। अरबों डॉलर की लागत से बनने वाले इस मुकाम को हिंदू कौम परस्त रहनुमाओं की जानिब से हिंदू वेटिकन कहा जा रहा है कि जिसकी तामीर के लिए इस शहर के बड़े हिस्सों को मुनहदम किया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इंडिया के सबसे मुतनाज़े मजहबी मुकामात में से एक बार 16वीं सदी की मस्जिद यानी बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर का इफ्तिताह करके दहाइयों पर मुहित हिंदू कौम परस्ती के वादे को पूरा करेंगे। नए मंदिर की तामीर इंतहाई दिलफरेब और शानदार है। 70 एकड़ के राम मंदिर कम्प्लेक्स में मंदिर का मरकजी हिस्सा 72 एकड़ पर मुहित है। ये 3 मंजिला मंदिर गुलाबी रेत के पत्थरों से तामीर करदा है, जिसमें स्याह ग्रेनाइट के इस्तेमाल ने उसे 4 चांद लगा दिए हैं। इस नई इमारत में बुलंदो बाला सतून है और यहाँ 70,000 मुरब्बा फीट सफ़ेद कीमती संगे मरमर भी इस्तेमाल हुआ है। संगे मरमर से बने एक चबूतरे की चोटी पर राम की 51 इंच यानी 425 फीट की मूर्ति रखी जाएगी। मंदिर की तरफ जाने वाले 13 किलोमीटर यानी 8 मील रामपाथ समेत 4 अहम सड़कों को कुशादा करने के लिए 3,000 से ज़्यादा घरों, दुकानों और मजहबी हैसियत रखने वाले मुकामात को या तो मुकम्मल या जुज़वी तौर पर मस्मार कर दिया गया है। नए मंदिर के इर्द गिर्द अज़ाफ़ी पुरकशिश मुकामात की तामीर का भी मंसूबा है, जिसमें राम की ज़िंदगी की अक्कासी करने वाले 162 ऐसे फनपारे नस्ब करना भी शामिल हैं जो उनकी ज़िंदगी का अहाता करते हैं। अयोध्या के सीनियर मुंतज़म गुरु दयाल कहते हैं कि हम अयोध्या को दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बनाना चाहते हैं। मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर मुल्क के तूलो अर्ज से लोग अयोध्या पहुँचे हैं, जहाँ ज़्यादातर लोग मजहबी जोशो जज्बे से मगलूब हैं। वहीं बहुत से लोग उसे तारीखी वाक़या करार दे रहे हैं। बाबरी मस्जिद को गुलामी की अलामत बताते हुए ये कह रहे हैं कि 22 जनवरी यादगार दिन है जो नस्लों तक याद किया जाएगा। इंडिया की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश के मारूफ शहर अयोध्या में राम मंदिर की तामीर का काम अभी मुकम्मल तो नहीं हुआ है, लेकिन गुज़श्ता रोज़ इसका इफ्तिताह पूरे मजहबी रस्म व रिवाज और शान शौकत के साथ किया जा रहा है। पूरे मुल्क में जश्न का माहौल है और जगह जगह तकारीब मुनक्कद की जा रही हैं। बहुत से लोग ये लिख रहे हैं कि 500 साल बाद इस सरजमीन पर राम की आमद हो रही है, जबकि कुछ लोग इसे नाकाबिले यकीन करार दे रहे हैं। बहुत से लोग इस तकरीब को दिवाली के जश्न जैसा कह रहे हैं, क्योंकि दिवाली वो त्यौहार है जो 14 साल के बिनवास यानी जलावतनी के बाद राम के अयोध्या वापस आने की याद में खुशी के तौर पर मनाया जाता है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।